Good morning, children. In 8th standard, today we start our next chapter 8, Confronting Marginalization in Civics. In the previous chapter, we read about two different groups and their experiences of inequality and discrimination. Though powerless, such groups have fought, protested, and struggled against being excluded or dominated by others. They have attempted to overcome their situation by adopting a range of strategies in their long history. Religious lawless armed struggle, self-improvement and education, economic uplift, there appears to be no one way of doing things. In all cases, the choice of struggle has depended on the circumstances that the marginalized find themselves in. Start chapter 8, Confronting Marginalization. इस चैप्टर में मार्जिनलाइजेशन के डेफिनेशन लर्न करे थे और जो हम बोलते हैं माइनॉरिटी होती है उसमें मार्जिनलाइजेशन में उसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, मुस्लिम्स. दिस माइनॉरिटी मीन्स जो पॉपुलेशन है कंपेयर टू द उसमें जो लेस नंबर होते हैं पीपल के, तो वो हम मार्जिनलाइजेशन में कहते हैं. आदिवासी, दलित, मुस्लिम और जो वुमेन्स होती है वो सब मार्जिनलाइजेशन में इंक्लूडेड होते हैं. ये जो पूरा एक पूरा समूह है, पूरा एक ग्रुप है, वो इन सोसाइटी में हर उसमें हम उनको जो बोलते हैं कि उनके जो राइट होते हैं, उनको फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसमें सब में हम उनको इक्वल नहीं करते हैं. उनके अंदर हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनको हम भेदभाव करते हैं, उनके व्यवहार के साथ ऐसा महसूस करते हैं और उन्हें अपना जो माइनॉरिटी होते हैं जो होते हैं उनको ऐसा अपमान, मतलब उनके जो अपमान मिलता है वो स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं और अधिकार और समानता का विरोध करते हैं. Marginalization is the tendency within the society to push those who are considered lacking the desired traits to the margin. In this chapter, we will read about some of the ways in which groups and individuals challenge existing inequalities. उनको असमानता होती है, जैसे कि आदिवासी से, दलित है, मुस्लिम है, वुमेन एंड अदर मार्जिनल ग्रुप्स बताया जो आर्ग्यू करते हैं कि सिंप्लीफाई बाय देयर बीइंग सिटीजन्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, उनको समानता मिलती है, उनको इनइक्वालिटी मिलती है. दे पॉजेस इक्वल राइट्स, वो बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स जो है वो उनको इक्वलिटी चाहिए, दैट मे बी रिस्पेक्टेड, और उनको मान मिलना चाहिए. मैनी अमंग देम लुक अप टू द कॉन्स्टिट्यूशन to address their concerns. In this chapter, we will see why the Constitution of India is something that marginalized groups invoke in the course of their struggles. As a part of this, we will look at how rights are translated into laws to protect groups from continued exploitation, and we will also look at the government's efforts to formulate policies to promote the access of these groups to development. Invoking fundamental rights. ये जो फंडामेंटल राइट्स हमारे अधिकार है, तो मौलिक, इनवोकिंग मतलब जो हमारे मूलभूत, मौलिक बोलते हैं उसको, मूलभूत जो हमारे अधिकार, मौलिक अधिकार. The Constitution, as we have learned in this chapter of this book, lays down the principles that make our society and political democratic. They are defined in through the as list of fundamental. So in the previous chapter we know
in the civics, we know already our fundamental rights that are an important part of the constitution. These rights are, for example, rights to equality, right to education. These rights are available to all Indians equally. तो पूरे जो इंडियंस है, जो सिटीजन्स ऑफ इंडियन है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया में हम, तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है सबके लिए इक्वली है. As far as the marginalized are concerned, they have drawn on these rights in two ways. First, by insisting on their fundamental rights, they have forced the government to recognize the injustice done to them. Second, they have insisted that the government enforce these laws. In some instances, the struggles of the marginalized have influenced the government to frame new laws in keeping with the spirit of the fundamental. Article 17 of the Constitution states the untouchability has been abolished. जो मेन पॉइंट हम बोलते हैं अनटचेबिलिटी, अछूत, जिसको हम छूते नहीं है. हमारे गांव में अभी भी हम देखते हैं कि जो छूत अछूत स्कूल क्यों होती है, इसके लिए स्कूल में यूनिफॉर्मिटी होती है, इक्वालिटी होती है. यूनिफॉर्म हम क्यों रखते हैं कि जो भी माइनॉरिटी भी है, जो भी लोअर कास्ट पीपल है, उनको भी वो और हमारे जो मेजॉरिटी पीपल है, जो अपर कास्ट वाले हैं, वो भी सेम यूनिफॉर्म में से वो सेम अलग ना पड़े. इसके लिए अनटचेबिलिटी मतलब अछूत, छूना नहीं, हैज बीन abolished. The Article 17 of the Constitution states that the untouchability has been abolished. नाबूद हो गई है, खत्म हो गई है. What this means is to that no one can been forth prevent दलित्स. इसके मतलब कोई भी दलित नहीं है, लोअर कास्ट है ही नहीं, सब all are equal. In a democratic country, we all are equal from educating themselves. Entering temples, मतलब कि पहले मंदिरों में अनटचेबल जो होते थे, अच्छे तो वहाँ नहीं आ सकते थे, तो अभी वो टेम्पल्स में एंटर हो सकते हैं. उनको एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन का हक है, यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज. It also means that it is wrong to practice untouchability and that this practice will not be tolerated by the democratic government. In fact, untouchability is a punishable crime now. अगर हम ऐसा व्यवहार रखते हैं तो ये गुनाह कहलाता है और उनके लिए क्राइम कहा जाता है, उनको पनिशमेंट भी दी जा सकती है. देयर आर अदर सेक्शंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये आर्टिकल 17 में कहा है कि जो अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश. वैसे दूसरे भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जैसे देयर आर अदर सेक्शंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हेल्प टू स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 15 of the Constitution notes that no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, race. Article 15. Article 15 of the Constitution, what this states that no citizen of India shall be discriminated. No citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, race, caste, sex, or place of birth, etc. This has been used by Dalits to seek equality where it has been denied to them. Therefore, Dalits can invoke or draw on a fundamental right or rights in situation where they feel that they have been treated badly. इसके लिए दलित, पहले तो हम दलित का वर्ड समझ ले. दलित का मतलब पुअर पीपल नहीं है, लोअर कास्ट होती है, लोअर पीपल होते, पीपल नहीं, सॉरी, लोअर कास्ट, उसको हम दलित कहते हैं. पुअर नहीं, गरीब नहीं, दलित का वर्ड है लोअर कास्ट. तो दलित कोई भी
इन्वोक कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं अपने राइट में। कोई भी सिचुएशन में अगर उनके साथ बैडली ट्रीटमेंट हुआ, डिस्क्रिमिनेट हुए, तो वो उनके राइट है, फंडामेंटल राइट है कि वे feel that though some individuals or community or even by the government, they have drawn the attention of the government of India to constitution, demanding the government abide by it and do justice to them. तो वो न्याय मांग सकते हैं, जस्टिस कर मांग सकते हैं. Likewise, other minority groups, दलित के अलावा जो अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स हैव ड्रॉन ऑन द फंडामेंटल राइट्स सेक्शन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. हम बोलते माइनॉरिटी मतलब लघुमती, जो पॉपुलेशन हमारी है उसमें से जो लघुमती का मतलब, माइनॉरिटी का मतलब है जो उनके सामने जो नंबर में एक कास्ट जो है नंबर में कम है, तो हम उसको माइनॉरिटी में गिनते हैं. दे हैव पर्टिकुलरली ड्रॉन अपॉन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. इन द केस ऑफ कल्चरल and educational rights, distinct cultural religious groups like the Muslims and Parsis have the right to be the guardian of the content of their culture, as well as the right to make decisions on how best the content is to the preserved. Thus, by granting different forms of cultural rights, the Constitution tries to ensure cultural justice to such groups. The Constitution does this so that the culture of these groups is not dominated nor wiped out or by the culture of the majority community. गवर्नमेंट ने जो हमारे ये हम बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमारी जो है उसके ऊपर से उन्होंने लॉस बनाया है, मतलब छुआछूत जो बोलते हैं अनटचेबिलिटी, उनको भी नाबूद करा गया है, उनको जो उन्मूलन कर दिया, उनको एबोलिश कर दिया. उसका मतलब है कोई भी व्यक्ति तो दलितों को पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए, टेम्पल में एंटरिंग करने के लिए, मंदिरों में जाने और जो पब्लिक उनके फैसिलिटीज है उनको इस्तेमाल करने के लिए कोई रोक सकता नहीं है. इन इंडिया के अंदर जो हमारे सिटीजन्स होते हैं वो सारे जो रिलीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर के, कोई भी सेक्स के ऊपर के, बर्थ ऑफ प्लेस के ऊपर भी कोई भी उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता है, भेदभाव नहीं रह सकता है. इन इंडिया के अंदर जो ये मार्जिनलाइजेशन है, उनके जो ग्रुप है उनके लिए एक लॉज एंड उनके जो आर्टिकल्स एंड उनके लिए कानून और नीतियाँ बनाई गई है. बहुत सी ऐसे आर्टिकल्स है यहाँ से उनके जो वर्क है उनकी एक निर्णय पर आधारित होती है, जैसे कि गवर्नमेंट उसको एक प्रोत्साहन देती है और उनके समूह के सही अवसर पर उपलब्ध कराए जाते हैं. इन राज्य और केंद्र सरकार के जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है. फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पर मुफ्त और रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. So with this, after that we will see the next topic in the next class. Thank you very much.